So students, here we start with another very important topic, and that is work, power, energy and collisions. Right? Maybe within 5-6 days time, you will get a book like this, which will be comprising of 3 chapters. One is work, power, energy. Second one is surface tension, and third one is dual nature of radiation, means photons. Okay. We are going to talk about the first chapter of that. Temporarily, I'll give you some loose sheets, maybe 9 to 10 pages. जब तक book नहीं आ जाता, जैसे book आ जाता है, you can discard those. Okay. Now, before starting with this chapter, we must understand some very basic mathematical tools. Okay, and the name of the subtopic of mathematics is derivatives or differentiation. Biology students, you must remember this. Must means I am going to give you some basic formulae. They are already there on page number 3 of this book, vector wala book. First chapter is measurement, second chapter is vectors. उसके बीच में basic concepts करके एक छोटा सा 4-5 pages है. These basic concepts are very important for you because maybe all of you have not taken the foundation course. Some of you have taken, some of you have not taken. So those who have not taken, you must master these pages. Those who have taken, derivative शुरू होने में अभी भी foundation course में time लगेगा because I think foundation course lecture happens once a week. Yes or no? And I will be needing this derivative and integration every now and then. So I will introduce some basic concepts. Students, you must remember them. Right, the very most basic most meaning of this is dy by dx. खाली ध्यान से सुनते जाओ बेटा. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, or else it is change in y with respect to x. एकदम सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. एकदम सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बेटा आप करंट कैसे लिखते हो? Q अपॉन टी. करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. इसका और सिस्टमेटिक तरीका है और dQ अपॉन dt. राइट? तो आप इसको बोलते कैसे हो? स्कूल लेवल तक इसका नॉलेज क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या बोलते थे इसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. डी बाई dt का मतलब होता है रेट. Okay, d by dt का मतलब होता है rate. So this is rate of flow of charge. But in the language of mathematics, how would you call this as? I is derivative of Q with respect to t. What is this? How do you read this? Derivative of y with respect to x. तो इसको आप कैसे रीड करोगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t. आप वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हो? अनदर एग्जांपल. वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हो? वेलोसिटी इज ds by dt. कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? वेलोसिटी इज कम ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बराबर ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. d by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज s वेक्टर, दिस इज v वेक्टर. ये आपका स्कूल लेवल नॉलेज हुआ. कॉलेज लेवल नॉलेज बताओ आप इसको कैसे बोलोगे? मैथमेटिक्स वाइज v इज, कम ऑन, प्राउड ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग. एक्सीलरेशन फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. फोर्स इज रेट ऑफ, सेकंड नंबर पे ऐसे फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ऐसे 50 चीजें लिख सकते हैं हम लोग. राइट? नाउ सम बेसिक फॉर्मूले व्हिच यू मस्ट नो. बेसिक फॉर्मूले. इसमें से बेटा कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं. मैं सारे के सारे फॉर्मूले वापस लिखता हूँ. मैं सारे के सारे. So when my lecture is over, you must remember this part extremely well. अभी मैं जो भी लिखूंगा, you must know this very well. Okay?
If you want, I'll just take a picture of this and give you the printout of that, so that you can take 3-4 printouts of that. एक वेक्टर की बुक में चिपका दो, एक वर्क पावर की बुक में चिपका दो, जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग नहीं हो जाता, राइट? बेटा फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला इज d by dx of x raised to n. एक और बात ध्यान में रखने का, इधर x है तो इधर x ही आना चाहिए, इधर t है तो इधर t आना चाहिए, इधर थीटा है तो इधर थीटा आना चाहिए. इसको आप रीड कैसे करोगे? डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. मान लो इसको मैंने d by d थीटा लिखा, तो फिर इधर थीटा होना चाहिए, राइट? इट इज समथिंग लाइक आई एम स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, तो मेरे पास वेइंग मशीन किलोग्राम में रीड करना चाहिए, वो इंचेस में और सेंटीमीटर में रीड नहीं कर सकता है. With the help of this, I cannot find out my weight. I can find out my height. Yes or no? So it is called with respect to. अभी के बाद में with respect to पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा. अभी के बाद में ये लिखूंगा with respect to. Yes everyone? Okay. तो बेटा पहला फॉर्मूला है d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. nx raised to n minus 1. For example, if I ask you what is derivative of x cube? Should it be 3x square? What is derivative of x raised to 5? 5x raised to 4. So the logic is very simple. Power becomes coefficient and the new power is reduced by 1. Power becomes coefficient and new power reduces by 1. Socho, another example. What is derivative of x? 1. Very good. Because this is d by dx of x raised to 1. इसका मतलब this is 1x raised to 1 minus 1. So is it 1x raised to 0 and therefore it is 1. So we get a very simple result. Derivative of something with respect to the same thing is always 1. Derivative of, अगर मैं इसको बेटा d by d थीटा लिखता हूँ और ये थीटा है, मेरा आंसर 1. राइट? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने dt कैंसिल किया, वो एकदम गलत है, ये फंक्शन है. डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सेम थिंग इज ऑलवेज 1. हाउ डू यू रीड दिस? अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं कैसे करूंगा? डेरिवेटिव ऑफ समथिंग with respect to the same thing, with respect to the same thing is 1 always. समझा बेटा? फर्स्ट फॉर्मूला समझा? नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग्स. डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो एक और चीज लिख लेता हूं. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is always 0. Derivative of constant is always 0. For example, बेटा मैं ये लिखता हूँ. For example, derivative of pi with respect to x क्या होता है? Pi is 3.142. अभी इधर x हो, y हो, टाइम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी सपोज 8:45 हो रहा है, पाई का वैल्यू अभी 3.142 है. 9 o'clock को पाई का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? हाँ, मैं अभी इधर खड़ा हूँ, मैं 2 मीटर चलता हूँ तो पाई का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? That means it is a constant. So what is the logic? Derivative of constant is always 0. Derivative of any number is always 0. For example, what is derivative of 4 with respect to x? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर is 0. Yes or no? So this is rule number 2. Rule number 2. Derivative of something with respect to the same thing is 1 always. Rule number 3. d by dx of sin x. d by dx of k sin x. d by dx of sin kx. And finally d by dx of k sin kx. बेटा एक बार ये वेरिएशन आपको समझ में आ गया ना, कॉस वाला पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल और आपको साइन और कॉस के साथ ही डील करना है. ध्यान से सुनो. डेरिवेटिव ऑफ sin x is plus cos x. डेरिवेटिव ऑफ k sin x, इसमें k sin के बाहर है, बाहर मतलब दिस इज गोइंग आउट. So the rule says that constant goes out of derivative. Constant goes out of derivative. Constant goes
आउट ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा ये क्या हो गया अभी, इट इज k d by dx ऑफ sin x, क्योंकि k बाहर गया। अब जैसे ये k बाहर गया तो ये जो d by dx ऑफ sin x है ये प्रीवियस वाला फॉर्मूला हो गया। सो इज इट k cos x, यस और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ k sin x? k बाहर गया, now it becomes the previous formula, so it is k cos x। समझा? अभी ध्यान से सुनो, k अंदर है, राइट? k अंदर है मतलब ये एंगल का पार्ट है, राइट? सो दिस शुड बी रिटन एज cos kx इनटू डेरिवेटिव ऑफ kx। ये पार्ट बेटा थोड़ा टफ है ना? इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ आउटर, रूल्स लिखता हूं मैं, छोटे छोटे रूल्स लिखता हूं। डेरिवेटिव ऑफ आउटर keeping inner as it is, keeping inner as it is, into derivative of inner, into derivative of inner। इधर बेटा आउटर कौन है? साइन फंक्शन। इनर कौन है? kx। k का मतलब मान लो 2, k का वैल्यू इज 2, x इज 30 डिग्री, तो बेटा ये साइन ऑफ 60 हो गया, राइट? k इज अ नंबर, लॉजिक समझा? सो ओवर हियर it will be cos kx into derivative of kx। now what is derivative of kx? k बाहर गया, right? so it is k derivative of x, and what is d by dx of x? 1। तो मेरा फाइनल मोस्ट आंसर क्या हो गया? मेरा फाइनल मोस्ट आंसर हो गया k cos kx। ये मेरा फाइनल मोस्ट आंसर हुआ। समझा कि वापिस बोलो? 4 वेरिएशंस है, इसमें k है ही नहीं, इसमें k बाहर है, इसमें k अंदर है, और इसमें k बाहर भी है और अंदर भी है। नो k आउटसाइड साइन फंक्शन, k इनसाइड साइन फंक्शन, एंड k आउटसाइड आल्सो एंड k इनसाइड आल्सो। तो ये तो एकदम सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ k sin x? k cos x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ ये, राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin kx? k cos kx। ये कोई बता सकता है? ये कोई बता सकता है बेटा? ये k बाहर गया, it is d by dx of sin kx, and d by dx of sin kx मतलब आपका फॉर्मूला नंबर 5 हो गया। फॉर्मूला नंबर 5 का फाइनल आंसर क्या था? So can I say this is k into k cos kx? So is it k square cos kx? समझा? ट्रस्ट में बेटा ये 4 समझा ना, तो इसके बाद वाला जो 4 है ना, उसमें मैं जिधर जिधर साइन दिखता है उधर उधर कॉस करने वाला। एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, आपको ये 4 समझा क्या? वापस लिखो, फिफ्थ वन वापस करते पूरा, हाँ ध्यान से, बिकॉज मुझे वैसे भी आपको इसकी बोर्ड पिक्चर देनी है, तो मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग में लिखता हूँ। ओके, वन बाय वन। पहले जो आपको मालूम था वो वाला। चलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? come on, proud of you। is it plus cos x? ये समझा बेटा? what is derivative of k sin x, where k is some number, when k is some number constant, right? so should it be k into derivative of sin x? what is the rule? constant goes out of derivative। तो अभी ये कौन हो गया बेटा? ये कौन हो गया? is it my previous formula? so can I say it is k into cos x? ये मेरा आंसर हो गया। पांचवा वाला ध्यान से सुनो, d by dx of sin kx, इसको बोलते हैं आउटर, इसको बोलते हैं इनर। आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, राइट? तो ये आंसर आएगा बेटा cos of kx। डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, so डेरिवेटिव ऑफ sin kx is cos kx। लेकिन k के साथ भी तो x है ना, तो इनटू करके d by dx of kx लिखने का। अभी समझा? अभी इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये तो मेरा आंसर आ गया cos kx इनटू, बेटा ये k बाहर गया,
So this is k, d by dx of x. And what is d by dx of x? Here you are. बराबर? इसका मतलब this is cos kx into k वन सा. तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? k cos kx. ये पार्ट समझा आपको? बस खाली ये टफ था, क्योंकि एक बार ये समझाना, ये आपका फाइनल आंसर है. एक बार ये समझाना तो आपका 6 फॉर्मूला इजी है, राइट? अभी k बाहर भी है और k अंदर भी है. k बाहर भी है और k अंदर भी है. तो व्हाट विल बी d by dx ऑफ k sin kx. रूल क्या बोलता है बेटा? ये बाहर है, तो ये हो गया k d by dx of sin kx. And what is this? What is this? Is it formula number 5? Is it formula number 5? ये वाला है ना? और उसका फाइनल आंसर क्या था? So can I say this is k, ये वाला, into k cos kx, right? So is it k square cos kx? ध्यान से सुना बेटा, इसको k 3 बार नहीं लेने का, बिकॉज ये cos फंक्शन के बाहर है, तो ये एल्जीब्रा हुआ, और ये cos फंक्शन के अंदर है, मतलब ये एंगल हुआ, राइट? ये एल्जीब्रा हुआ वैल्यू, और बेटा ये एंगल का पार्ट है. सो डोंट मिक्स अप प्लीज. समझा? आई एम सुपर श्योर आप लोग 7th 8th 9th 10th मुझे दे पाओगे. मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, आप लोग बोलोगे. What do you think should be derivative of cos x? Then what is derivative of k cos x? K बाहर. Then what is derivative of cos kx? And then what is derivative of k cos kx? करना कुछ नहीं है बेटा. Derivative of cos is minus sin. बस वो वाला आइडियोलॉजी यूज करना है. What is this? Minus sin x. Make me feel proud. Minus k sin x. Proud of you. Very good. चलो. minus k sin kx. Minus sin kx ये हो गया. And then k बाहर. Very good. चलो लास्ट वाला. minus k square sin kx. बराबर. ट्रस्ट मी बेटा. ये जो मैंने लिखा है ना, थ्रू आउट आपके सिलेबस में काम आएगा. थ्रू आउट छप जाना चाहिए दिमाग में, है ना? जब तक मैं इसका प्रिंट आउट नहीं देता, फटाफट एक बार जरा कॉपी कर लो. माय सजेशन वुड बी ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पेज है ना? इधर लिखो, थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग्स में लिखना, बिकॉज आफ्टर 3-4 लेक्चर्स आई विल गिव यू सिमिलर फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन. ये हो गया बेसिक फॉर्मूले फॉर डेरिवेटिव्स. I will give you basic formula for integration as well. सुनो, उल्टा लिखना है. 1, 2, 3 and 4. Right? Will you please be little fast? या तो एक काम करोगे, because 9 o'clock हो रहा है अभी. आपका 3rd लेक्चर खत्म होता है ना, तभी वापिस आ जाओ. मैं इसका फोटो लेके प्रिंट आउट करके रेडी रखता हूँ. 3rd लेक्चर के बाद आप वापिस आ जाओ. Stop the video please.